السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ دیوبندی بننے کے لیے، بدعقیدہ بننے کے لیے، وہابی بننے کے لیے جاہل ہونا ضروری ہے، شرط ہے، لازمی ہے، ورنہ کوئی بدعقیدہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ پہلے عقل کا ضائع ہونا ضروری ہے، ورنہ اس وقت تک انسان بے ایمان نہیں بنتا، بدعقیدہ نہیں بنتا، جب تک کہ اس کے پاس عقل ہوتی ہے۔ وہابی دیوبندی انسان اسی وقت بنتا ہے جب اس کی عقل چلی جائے اور اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ آئیے کچھ اسی طرح کا ایک دیوبندر اور سامنے آیا اور وہ کہنے لگا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جو نیت کرتے ہیں وہ زبان سے کہنا ہندی میں یہ حرام ہے، یعنی جو ہماری جو مادری زبان ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ نیت کی میں نے نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے، وقت جو بھی ہو، تو یہ زبان سے نیت کرنا اس کے نزدیک حرام تھا۔ بہرحال میں نے اس سے پوچھا بھی کہ یہ آپ کو دلیل کہاں سے ملی، یہ سند کہاں سے ملی، یہ ثبوت کہاں سے ملا، ذرا وہ پیش کیجئے۔ پیش نہیں کر سکا۔ بہرحال پھر میں نے سوچا کہ یہ عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے اس طرح مانیں گے نہیں۔ میں نے ڈائریکٹلی دارالعلوم دیوبند کال کیا مفتی راشد صاحب کو۔ مفتی راشد صاحب نے کال کٹ کر دیا۔ بہرحال پھر میں نے اور 2-3 مفتیوں کو کال کیا، پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ خیر میں نے اس سے شرط لگائی تھی کہ میں تیرے سوال کا جواب دوں گا تو میرے سوال کا جواب دے۔ بہرحال میں نے اس کے سوال کا جواب اسی کے گھر سے دلوا دیا، پھر بھی اس کو سمجھ نہ آیا۔ بہرحال پھر میں نے اپنا سوال کیا، وہ سوال بتائے بغیر بھاگا اور کہنے لگا کہ میرا سوال کا جواب ہی نہیں ملا ہے۔ اب بتائیے، آپ حضرات اس گفتگو کو پورا سنیں اور ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ بھی کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اچھا، ایک اور دیو کا بندر تھا جس نے معاذ اللہ کہا کہ بریلوی مشرک ہے۔ اگر کوئی فرقہ مشرک کہلانے کے لائق ہے، کوئی مشرک کہلانے والا ہے تو وہ بریلوی ہے معاذ اللہ۔ جب میں نے اس کو کال کیا، میں ایسے کال نہیں کرتا ہوں، جب کوئی مجھے پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تب میں اس شیطان کو کال کرتا ہوں۔ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہاں ہمیں اگر کوئی چھیڑ دے تو پھر چھوڑتے نہیں۔ یہ ہم سنی حنفی بریلویوں کی عادت ہے، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ ہم کسی کو بے وجہ کچھ نہیں کہتے، کسی کو نہیں چھیڑتے۔ اگر ہمیں کوئی شیطان چھیڑ دے تو پھر ہم چھوڑتے نہیں۔ خیر اس کو پھر جب میں نے کال کیا، بھاگا اصغری بیگم کے پاس اور مجھے لکھتا ہے کہ تم ہم جو ہے اصغری بیگم کو بات کرو، اصغری بیگم تم سے بات کریں گی۔ بہرحال اصغری بیگم نے تو مجھے کال نہیں کیا۔ خیر بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ حضرات اس پوری آڈیو کو، پوری گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہلو، وعلیکم۔ جی کون؟ یوٹیوب پہ نمبر مل دیکھا تھا۔ اچھا اچھا، آپ کون بول رہے ہیں؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ احمد انصاری۔ احمد انصاری، جی کہاں سے؟ یوپی کون سی جگہ؟ لکھنؤ سے۔ کھیری لکھیم پور۔ جی اچھا، کوئی شکایت؟ شکایت نہیں، بس ایسے اچھا، آپ کا مسلک؟ مطلب مسلک آپ کی جماعت کا نام؟ مسلک صاحب کی جماعت کا نام، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے فالو کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، آپ ان کو فالو کرتے ہیں، پر حنفیوں میں 2 طبقے ہیں، جی تو ان میں سے آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی؟ تو ہم ان کو فالو کرتے تو ظاہر سی بات ہم دونوں ہوں گے۔ دیکھیے،
कोई भी चीज या तो हलाल होती है हराम होती है, जी ऐसा नहीं होता कि हलाल भी हो और हराम भी हो। नहीं, यहाँ तो मकरू भी बना दिया है ना, जैसे पुड़िया खाना मकरू है, सिगरेट पीना मकरू है, बीड़ी पीना मकरू है। वो चीज एक अलग है। वो ठीक क्यों है, लगे भाई, आप ही तो कह रहे हराम और हलाल होती, तो हराम और हलाल पे आइए ना, फिर जो मकरू हराम कैसे? है जो हराम है वो हलाल नहीं हो सकती, जी, तो मकरू और कैसे जो होगा? हलाल है वो हराम नहीं हो सकती। ठीक है, और मकरू मकरू और मकरू तंजीही ये सब भी अलग मैटर है। आप मुफ्ती हैं? ए, जी मुफ्ती नहीं है जी, जी माशाल्लाह, आप होंगे हम नहीं है। जी, आप होंगे हम नहीं हैं। अच्छा जी, आप ही की जो है तय वो सुन के जो है थोड़ी बहुत नॉलेज हुई है, अच्छा क्लिप सुन के। अच्छा। मैंने सोचा ला आपसे बात कर लें। अच्छा, हजरत आपसे एक जो है सवाल करना था। सवालों की गठरी बांध के लेके आते हो सब, जी क्यों? जवाब, अगर भाई, सवाल करना हो आप तो जवाब भी देना होगा। जी, अगर आप सवाल करोगे तो जवाब भी दोगे। तो आप हम सवाल करेंगे, उसका जवाब दे दोगे, आप दे दो, फिर उसके बाद आप सवाल करिए, हम जवाब दे देंगे। क्या चीज? हम सवाल करेंगे, आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब करिए, सवाल करिए, हम जवाब देंगे। ईमानदारी से बोलिए कि आप मेरे सवाल का जवाब दे के जाएंगे, बगैर जवाब दिए नहीं भागेंगे। जी, आप भी ईमानदारी से बोलिए, जो है हम जो सवाल करेंगे आप भी जवाब देंगे, ऐसे नहीं भागेंगे। इंशाल्लाह, आप सवाल करिए। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो ये जो नियत करते हैं, हिंदी में क्यों करते हैं, अरबी में क्यों नहीं करते हैं? कौन सी नियत? नमाज की। नियत का मतलब है दिल का इरादा। जी बेशक। जी, अगर जबान से कह लिया तो इसमें कौन सी हर्ज की बात है? ये ये किसी जबान से कह सहाबा लेना। ने एक कहा हो, या किसी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हो, या मिनट, जो है सहाबा ने किया हो, या हाँ, आइम्मा, चार आइम्मा है ना, चारों आइम्मा में किसी ने भी ये ऐसा किया हो तो आप बता दीजिए। अच्छा, तो आप हनफी देवबंदी हैं? जी अच्छा, तो हनफी देवबंदियों के नजदीक ये जबान से कह लेना ये शिर्क है, कुफ्र है, जायज है, नाजायज है, मकरूह है या मकरूह तंजीही है, क्या है? जरा थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें। मुझे नहीं पता था कि आप जबान से नहीं कहते हो, आप सिर्फ दिल में कह के और नियत बांध लेते हो। मैं तो जी, समझता था कि शायद आप भी जबान से कहते हो। आज नहीं पता चला कि जबान से नहीं कहते हो आप लोग। जी, नहीं, हमारा ये कहने का मतलब है कि हमारी नजर में जबान से नियत करना सही नहीं है। अच्छा, तो आप काय से कहते हो? दिल में जो है इरादा करते हैं। तो ये जो जबान से कह दिल लेना में ये इरादा सही करते नहीं हैं है, कि दुरुस्त कहाँ नहीं कहाँ है। जा रहे हैं। एक मिनट, जी एक मिनट। जी बताइए। जबान से कहना दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, जी इसकी क्या दलील है आपके पास? जरा वो दलील, वो सनद पेश करें। जी, अगर हम आपसे कहें कि आप जो हिंदी में करते हैं, इसकी दलील कौन सी है, आप पेश करेंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, तो उसकी मैं वजाहत करूंगा बाद में। पहले आप मुझे इसकी दलील पेश करें कि जी, जबान से कहना ये मकरूह है, हराम है या ये जो है शिर्क है, हराम है, कुफ्र है, हराम क्या है? है, ये जो है हराम है, हराम शिर्क है है, भाई। हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया नहीं वो आप कर रहे हैं। अच्छा, तो चलिए दलील पेश कीजिए। भाई दलील आप लोग आज करते, आप पता पेश चला करेंगे ना सही आज पता भाई, आप आज तो पता अपना चला कि कहना कर रहे देवबंदियों हैं के ना, तो आप ही तो सफाई देंगे कि मैं देने लगूंगा, मैं ही करने लगाऊंगा। लाइन पर रहिए एक मिनट। जी लाइन पे है। हाँ, हेलो। हेलो। जी मुफ्ती साहब, क्या हाल है? सब ठीक है? अरे जनाब मुफ्ती साहब, तुम्हारे कॉल काट के भाग गए, दोबारा करता हूँ। हेलो। जी मुफ्ती साहब, वो मैं ये कह रहा था कि जो नियत बांधते हैं ना हम लोग, हाँ, जैसे जल्दी कीजिए, कहते फोन हैं। का वक्त नहीं है, तरावी का वक्त है, जल्दी फोन अरे कीजिए, अभी कहाँ, वक्त अभी नहीं अजानें भी नहीं हुई, अभी इतनी जल्दी कहाँ तरावी हो रही। तो नियत जो करते हैं, अरे फिर भाग गया,
फिर भाग गया जनाब ये आपका मुफ्ती। मैं दोबारा करता हूँ इसको अच्छा दूसरे को करता हूँ, ये नहीं भागेगा। एक देवबंद के मुफ्ती को लाइन पे लिया है। जी, कौन सा मुफ्ती है भाई? दारुल उलूम देवबंद का मुफ्ती था ये। खैर दूसरे मुफ्ती को लेता हूँ लाइन पे, रुकिए। ले लीजिए, आपके आलिम नहीं है जो उनको पकड़ रहे हैं? अरे भाई मुझे आज ही पता चला है कि आप लोगों के नजदीक हराम है जबान से कहना, तो इसलिए मैं आप ही के मुफ्ती साहब को पकड़ूंगा ना मैं। पकड़ लीजिए, उनको भी पकड़ लीजिए। जी जी जी, हाँ एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब बोल रहे हैं? हेलो जी बोलिए। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब बोल रहे हैं ना हजरत? जी बोल रहा हूँ, बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था जैसे हम लोग सब लोग जो है नमाज की नियत करते हैं, ये जबान से कह लेना ये जायज है नाजायज है, थोड़ा सा बताएंगे? जायज है ना? जी बेहतर है अच्छा, जबान से कहना। बेहतर है। जी हाँ, एक देवबंदी लाइन पर है, वो कह रहा है ये हराम है। मैं अगर कोई जरूरी समझेगा, फर्ज समझेगा, वाजिब समझेगा या सुन्नत समझेगा तब हराम है भाई। नहीं, वो तो डायरेक्टली कह रहे हैं कि तुम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो तुम कर रहे हो, तो इसलिए हराम है। नबी ने नहीं किया, नबी ने नहीं किया, ये सब एक अलग बात है। पहले तो उनको ये जान लेना चाहिए कि नियत नाम है दिल के इरादे का। हाँ, असल तो वही है। हाँ, मगर आपने जो बात कही है सिर्फ बेहतर है, अदा करने का सिर्फ अफजल है। मतलब इतना है। हाँ, जबान से अदा करना अफजल है। जबान से अदा करने का सिर्फ मतलब इतना है कि दिल और जबान दोनों एक जगह जमा हो जाए तो समझो जी। तवज्जो मुकम्मल है। जी 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 माशाल्लाह। मतलब दिल में यानी सोच रहा है कुछ और बात, जबान से कुछ और बोल रहा है। हाँ, यानी जो दिल में बात है, यानी जो हमारे दिल में है जिसलिए हम खड़े हुए हैं, वही हमारी जबान पे भी आ जाए। वक्त है जोहर का और दिल में हाँ वक्त है जोहर का और हम पता नहीं कहाँ कहाँ गुम हैं और ऐसे ही खड़े हो गए, है ना? मगर अगर हम जबान से कह लेंगे तो हमें पता रहेगा कि हाँ हम किस वक्त पढ़ रहे हैं और कौन से वक्त का हमने नाम लिया है। मतलब उसका सिर्फ मकसद इतना है कि तवज्जो मुकम्मल हो जाएगा। जी 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 जी, मगर ये साहब कह रहे हैं कि ये जो है वो हराम है, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा लाओ यार मुफ्ती साहब को मैं लाइन पे लूं। अच्छा, आप अपनी पहचान इनको बता दें कि आप देवबंद से ताल्लुक रखते हैं या फिर बरेली शरीफ से? जी, देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ मैं। देवबंद से ताल्लुक रखते हैं ना? जी। अच्छा, आप बात कीजिए जनाब। देख लीजिए पूरी डिटेल पर वहीं यूट्यूब पे मौजूद है भाई। ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको सलाम किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अरे वो चले गए जनाब, वो मुफ्ती साहब भी भाग गए। आप नहीं आएंगे सामने, वो कोई भी नहीं आएंगे सामने भाई। जी जी जी, दोबारा ले आऊं? दोबारा लेके क्या फायदा है भाई, अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? उन्होंने तुमसे खुद कहा कि मैं दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ, तो भाई वो सवाल का जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनके खैर तुम बहुत बड़े काबिल हो, वो मुफ्ती साहब है वो जाहिल हैं, है ना? तुम बहुत बड़े काबिल आदमी हो। नहीं, वो उसका जवाब नहीं देंगे जो हम पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, वाकई सही बात है, तुम्हारे सवाल का वो जवाब नहीं देंगे। एक और मुफ्ती को लाइन पे लेता हूँ, ठीक है? लाइन पर रहो। हाँ, वाकई तुम बहुत बड़े काबिल हो। मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह को पीठ दे, नमाज़े पढ़ने जाऊं मैं या अल्लाह को पीठ दे, जैसा तू चाहता है वैसा अल्लाह मुझे बना, अल्लाह मुझे बना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती असल साहब बोल रहे हैं? जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जबान से जो नियत करते हैं नमाज में, ये जायज है नाजायज है, क्या है? थोड़ा बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। क्या पूछ रहे हैं? जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ने के लिए जो खड़े होते हैं और जो जबान से कह देते हैं कि नियत की मैंने नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के, इतनी रकात नमाज फर्ज या सुन्नत जो भी है, कर लेना बेहतर है जबान से। और अच्छा। अगर कोई ना कर पाए, सिर्फ दिल ही में कह ले तो उससे भी हो जाएगा। हाँ, नियत नाम है दिल के इरादे का, मगर अगर जबान से कहा कह लेना जैसे हम लोग, बेहतर है ना?
कोई बंदा इसको जो है वो हराम बता रहा था। नहीं हराम नहीं। लाइन पर हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। अभी तरावी का वक्त है ना। हाँ तो अभी अजानें नहीं हुई हैं, अजानें हो जाएंगी अभी तो आप बात। हमारे यहाँ बस टाइम एक आपको मिनट, पता है? आपकी जमात का बंदा है हजरत आपकी जमात का बंदा है, आप जरा बात कर लें। वो कह रहे हैं कि कोई जवाब नहीं देगा। बोलिए जनाब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब हम ये चाहते थे कि आप अगर नियत करते हैं तो अरबी में करिए। उर्दू हो या अरबी हो, नियत जबान से कहना बेहतर है जी। और दिल से अगर कौन सी हदीस से आपने लिया है हिंदी में जो नियत कर रहे हैं? हाँ ये किस हदीस से आपने लिया है जो हिंदी में नियत कर रहे हैं? हिंदी में और अरबी में करना क्या जरूरी है? भाई इसकी जो हिंदी में कर रहे हैं। ये भी देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, जी जी जो आपसे बात कर रहे हैं ये भी देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। हाँ चलिए कहीं से भी हो, लेकिन वो पूछ रहा हूँ कि ये आप क्या करें, अरबी में कहना जरूरी है? हाँ वो कह रहे हैं अरबी में कहना जरूरी है और हिंदी में करना हराम है। नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा लाओ मुफ्ती साहब से बात करा दूं, इनका जो है डाउट दूर हो जाएगा। नहीं जो मसला, करना चाहिए। अरे भाई वो मसला यही है, उर्दू में करें हिंदी में करें अपनी भाषा में करें किसी भी जबान में कर सकते हैं, ठीक है। इसे अगर अजान हम लोग जो है हिंदी में देने लगे, अजान का मसला अलग है, ठीक है, और नियत का मसला अलग है। अजान और इसको एक दूसरे को नहीं ये कर सकते हैं नहीं एक जैसा नहीं। अगर नमाज में हम लोग नहीं आप क्या आप जो आलिम है क्या है? नहीं आलिम नहीं है। हाँ तो बस आपको मसला बताया जा रहा है ना, तो आप उसी तरह मान लीजिए, ठीक। बस जमात हमारी खड़ी होने वाली है, और अगर बात करना चाहें तो आप बाद में बात कीजिए, हमारी जमात खड़ी हो गई बिल्कुल। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती असल साहब जी। नहीं शुक्रिया। अगर बाद में जी जनाब अब मेरा मसला है, जी आपका मसला पूरा हो गया, अब मेरा मसला है। अभी आप ये बताइए कि बगैर वुज़ू के नमाज है। हेलो एक मिनट हमारे सवाल का अभी जवाब ही नहीं मिला। माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तुम्हारे घर के आलिम से मैंने जवाब दिलवा दिया, अब भी सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ। आप ये कहें कि जो है फजर में जो है 4 रकातें फर्ज है तो हम मान लेंगे। भाई इसकी दलील दो ना। अच्छा ऐसा करो जाओ, मैं समझ गया, तुम्हारे बस की बात नहीं है, जो मेरे सवाल का जवाब दो, जाइए आप, तुम्हारा काम हो गया। तुमने जो सवाल किया उसका जवाब मैंने तुम्हारे घर से दिलवा दिया है। आप लोग जो अब मेरा दिमाग खराब करेगा तू मुझे अभी जानता नहीं है ठीक तरीके से, समझा? गाली तो देगा तू, और क्या देगा। मैं तुझे गाली नहीं दूंगा, तेरा बैंड बाजा बजा के रख दूंगा मैं। अब तेरे सवाल का जवाब मैंने तेरे घर के मुल्लाओं से दिलवा दिया, अभी भी तेरे को सबर नहीं आ रहा। अभी साले तूने अभी कहा था ना कि हाँ ठीक है, वो तेरा मुफ्ती कह रहा था कि तू आलिम है, तूने कहा नहीं, तो उसने कहा कि तुझे मसला बताया जा रहा है, मसला सुन, तूने कहा हाँ ठीक है। तो हमने सुना। जाहिल कहीं के साले पुतलियां मान के लेकर आया सर सवालों की। अब तू मेरे सवाल का जवाब दे, तेरे सवाल का जवाब पूरा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ बता। ये बता, दुनिया देवबंदियत में मर्दों में भी निकाह होता है? मर्दों में निकाह होता है? हाँ। कौन सी किताब में भाई लिखा है? तज़किरतुर रशीद में लिखा है। जी ये कौन थे? ये मौलवी रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानोत्री का निकाह हुआ है आपस में। सहाबी थे कौन थे? अरे जमात देवबंद के 2 शैतान थे, लूटी जाने बलात्कारी। आप सहाबियों की बात करें, फिर वही बात। अबे साले शैतान कहीं साले कुत्ते की औलाद। हेलो। हाँ हेलो। कौन? जी नूर हसन बोल रहा हूँ। क्या? नूर हसन बोल रहा हूँ। अच्छा जी आप कौन? मैं अहमद रजा। अच्छा कहाँ से? झारखंड से। जी आपका मसलक? मैं हनफी मसलक से ताल्लुक रखता हूँ। हनफी मसलक में आपकी पहचान बरेली या देवबंदी? दोनों है।
दोनों हैं? जी। अच्छा अच्छा, मगर आपने तो मेरे पर्सनल पे लिख के भेजा है तू वो मक्कार, है ना? और ये लिखना भी तुमसे नहीं आया, तू वो मक्कार है या जो भी लिखते, तू वो मक्कार तू है, ये पता नहीं क्या क्या लिखा है। फिर नीचे लिखा है दुनिया में अगर कोई फिरका मुशरिक कहलवाने वाला है तो वो बरेली है। हैं? कैसे? वही सतवार से जी मुशरिक होने की बात आए तो मुशरिक बरेलवी है, क्या चीज? मैं देवबंदी हूँ। और बाज बातें जो कि आला हजरत के पहले सुन्नत वल जमात की तरह है तो उस एतबार से मैं बरेलवी हूँ, आला हजरत के मानने वाला भी हूँ। आप आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को भी मानते हैं? तो आप भी मुशरिक हो गए। नहीं, उनकी बात को जो अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक हो उसको मानते हैं। अरे तो ये क्या बात हो गई, ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा ये बताइए, आप आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमान मानते हैं या मुशरिक मानते हैं या काफिर मानते हैं, क्या मानते हैं? ठीक है, मैं अभी मैं बात नहीं अभी बात करो, अभी ऐसे पल्ला झाड़ने से। बाद में बात करते। जी जनाब हजरात, सुन लिया आपने। देखिए इसी तरह के होते हैं ये देव के बंदर। कुछ नहीं आता जाता, चिनाव चिन छाता, बस पता नहीं क्या समझकर नूर हसन को कॉल लगा देते हैं और जब इनसे कुछ पूछा जाए तो बताने के लिए तैयार नहीं होते। सवालों की गठरी सिर पर बांधे चले आते हैं, बोझ लादे चले आते हैं, मगर इनकी हालत पतली हो जाती है उस वक्त जब मैं इनसे कहता हूं कि सवालों की गठरी बांध के तो तुम आ गए, मगर सवाल उसी वक्त करना जब तुम मेरे सवाल के जवाब देने की हिम्मत रखो। एक सवाल तुम रखो, एक सवाल मैं रखता हूं, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इनके सवाल का जवाब देता ही हूं और इनके घर से देता हूं, मगर इनकी हालत क्यों पतली हो जाती है? अच्छा ये मानेंगे कब? कितने बड़े बेगैरत होते हैं, बेशर्म और बेहया होते हैं ये लोग। क्यों इतनी जिल्लत और रुसवाई के बाद भी जो है ये तौबा नहीं करते? अच्छा हर शख्स इतनी तो अकल रखता है ना कि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है, जिससे नफरत रखता है उससे जो है बुग़्ज़ जिससे रखता है उसकी बुराई करता है। मोहब्बत करने वाले की तारीफ करेगा, बुग़्ज़ रखने वाले से उसकी बुराई करेगा। बहरहाल मैं देवबंदरों की पिलाई करता हूं, धुलाई करता हूं, उनकी सर्विस करता हूं बेहतरीन तरीके से और उनके ही मुंह से सारा कुछ उगलवा देता हूं तो इनको बुरा लगता है। उसी जलन में ये मुझे कॉल करते हैं, उन्हीं की मोहब्बत में ये मुझे कॉल करते हैं। तो फिर हम अपने नबी के गुस्ताख को कैसे बख्शें, जरा बताएं ना आप हजरात, फैसला करें। ये जिम्मेदारी आप तमाम हजरात की है। आप तमाम हजरात भी खड़े हो, इन शैतानों को जो है ठिकाने लगाएं। इन शैतानों की अक्लें जो गायब हो चुकी हैं, जरा मेहनत करें थोड़ी बहुत। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरह नरसिंगा बारा नरसिंगा की हालत खराब की हुई है, अब इन शैतानों की भी आप सर्विस करो। बैठने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत सब्र किया है। हालात देखो, हालात देखो, हालात देखो। अरे शैतानों तुम्हीं ने हालात खराब किए। हालात हर वक्त अच्छे रहते हैं और मुसलमान कभी हालात को नहीं देखते, मुसलमान कभी हालात को नहीं देखते। और ये ऐसे सुलहकुल्ली शैतानों ने हम मुसलमानों के ईमान को बर्बाद किया है, हमारे जज्बे को बर्बाद किया है, जो कि मुसलमान एक छोटी सी गुस्ताखी पर बिलबिला उठता था।
हालात देखो, वक्त देखो, रे आपस में क्यों लड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे शैतानों ने हमारा ईमान बर्बाद किया है। अरे कहां मर गए वो लोग जाके जो कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक जगह आ जाओ। शैतानों, तुमने नरसिंगा नदी के खिलाफ कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। पता चला कि शायद तुम्हारा हमारे नबी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम्हारा रिश्ता हमारे नबी से होता, तुम्हारा ताल्लुक हमारे नबी से होता, कलमा पढ़ने का कुछ तो एहसान तुमने अदा किया होता। पता चला कि कलमा तो पंडित लोग भी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम लोग पढ़ते हैं। कलमा तो शायद नरसिंगा बारासिंगा को भी याद हो, और उसकी एक फाहिशा औरत जो कुरान के खिलाफ बकवास कर रही थी, कलमा तो उसे भी याद था। बहरहाल बहुत सारे गैर मुस्लिमों को, बहुत सारे हिंदुओं को कलमा याद होता है, मगर कलमा पढ़ लेने से मुसलमान नहीं हो जाता खाली, उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। खैर, बाकी की बातें बाद में होंगी इंशाअल्लाह। बस फैसला आपको करना है मुसलमानों। इन शैतानों से अगर बचना है तो इनका दंदान शिकन जवाब देना है, जबरदस्त जवाब देना है, डंडा ठोक के जवाब देना है। बस अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें, इन शैतानों से बचें और अपने तमाम सुन्नी मुसलमान भाइयों को बचाएं। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।